We'll be discussing prism today. Let us discuss today about the prism. प्रिज्म के बारे में आप लोगों ने 10th क्लास में सुना होगा, प्रैक्टिकल में भी आपने किया है प्रिज्म के बारे में, वहां प्रैक्टिकल भी आपने किया. टुडे लेट अस फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज अ प्रिज्म. कुछ टर्म्स है प्रिज्म्स की, वो हम डिफाइन करेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म. नाउ लेट अस डिफाइन व्हाट इज अ प्रिज्म. सी हियर, देखो बेटा, प्रिज्म जो है इट इज बेसिकली a portion of a refracting medium. It's a small piece of refracting medium, but this prism is bounded by two plane faces, and these two plane faces, these are the two plane faces of the prism. This is face number 1 and this is face number 2. These two faces of the prism which bound the prism, they are inclined to each other. That means they form angle with each other. In case of lenses, we have two curved surfaces. In a lens was a piece of refracting medium which was bounded by two surfaces, one of which was curved, or both were curved. But in case of prism, these two faces which bound this medium, they are plane faces. They are plane faces. This is plane face number 1 and this is plane face number 2. This is plane face number 1, this is plane face number 2. These two plane faces, they are inclined to each other. That means they make some angle with each other. In the figure, I have made this prism here. So prism is a piece, or we can say a portion of a refracting medium through which light gets refracted, bounded by two plane faces that are inclined to each other. In figure, we have these two plane faces A, B, C, D, and another one is B, A, B, E, F. These two plane faces of prism, they are also called as refracting faces of prism. What they are called as? Refracting faces of prism. Because refraction of light takes place at these two faces. They are called as refracting faces of prism. At this face, the light travels from rarer to denser medium, and at this face, it now travels from denser to rarer medium. It's because of this, these two faces, they are called as refracting faces of a prism. These two refracting faces of prism, they are inclined to each other at certain angle. That angle is called as angle of prism. What is that called as? Angle of prism. So what are the refracting faces of prism? The plane faces of prism which bound the prism, that are inclined to each other, are called what? Refracting faces of prism. The angle between these two refracting faces of prism, that angle is called as angle of prism. This angle, the angle between two refracting faces of a prism, that is called as what? Angle of prism. Now one more term is edge of the prism. You know, this line, along which these two plane faces meet each other, this line is called as what? Refracting edge of a prism. The line along which these two plane faces of prism meet each other, this line is called as what? Refracting edge of prism. Refracting edge of prism. देखो बेटा, प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक मीडियम है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, जिसमें से लाइट पास हो जाएगी और लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी. ठीक है ना? इस रिफ्रैक्टिंग मीडियम को बाउंड किया है दो प्लेन फेसेस ने, जो प्लेन फेसेस आपस में इंक्लाइंड है, जो आपस में एंगल बना रहे हैं.
उन प्लेन फेसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑफ प्रिज्म, बिकॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट दीज फेसेस। जो इन प्लेन फेसेस के दरमियान एंगल होता है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। ये लाइन देखो, फर्स्ट करो, दिस इज वन फेस, दिस इज अदर फेस, दे मीट अलोंग दिस लाइन, ये जो ना ऊपर, they meet along this line. This line is called as what? Refracting edge of prism. यहां पर जो मेरा रिफ्रैक्टिंग एज है वो क्या है? AD। तो रिफ्रैक्टिंग फेसेस मेरे यहां दो है, कौन कौन है? A B C D, दूसरा कौन है? शाबाश, A D E F। ठीक है ना? जो इन रिफ्रैक्टिंग फेसेस के दरमियान ये एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज व्हाट? एंगल ऑफ प्रिज्म। अब एक सेक्शन होता है इस प्रिज्म में, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। देखो ये क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। व्हाट इज दिस? एंगल ऑफ प्रिज्म। व्हाट इज दिस? एज ऑफ द प्रिज्म। अब हमने बोलना है प्रिज्म का जो प्रिंसिपल सेक्शन होता है वो कौन होता है, ठीक है ना? देखो, दिस इज रिफ्रैक्टिंग एज, है ना? व्हाट इज दिस? दिस इज रिफ्रैक्टिंग एज, बिकॉज दिस इज द लाइन, this is the line along which the two plane surfaces meet each other। ठीक है ना? ये लाइन, अगर मैं यहां पर कोई भी प्लेन कट करूंगा, एनी सेक्शन ऑफ प्रिज्म, एनी सेक्शन ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का कोई भी हिस्सा, एनी सेक्शन ऑफ प्रिज्म which is cut by a plane perpendicular to the refracting edge, यहां से मैं प्रिज्म को काटूंगा तो वहां पर आपको एक ट्रायंगुलर सूरत में आई, एक शक्ल आई इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना? दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। यानी ये ट्रायंगल जो यहां पर आपने हासिल की, जब मैंने इस प्रिज्म को ऐसे काटा परपेंडिकुलर टू द एज, एनी सेक्शन ऑफ प्रिज्म cut by a plane perpendicular to its refracting edge, that is called as principal section of prism। ये जो triangle आपको नजर आ रही है यहां पर, this is what? This is the principal section of prism। In figure, this ABF, this is what? This is the principal section of prism। ठीक है ना? This was introduction about the prism। Now let us discuss refraction of light through prism। ये समझ आया? Let us now discuss refraction of light through prism। This is important। Refraction of light through prism। Refraction of light through prism। Refraction of light through prism। क्लास 10th में आपने इसको लेबोरेटरी में भी किया होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। मैं थोड़ा वही क्लास 10th का आपका यहां पहले रिवाइज करूंगा आज के लेक्चर में। देखो बेटा, सपोज ABC इज प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। यहां पर मैं ये लूंगा, दिस इज व्हाट? शाबाश, दिस इज प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। इसका मैं नाम रखूंगा ABC। ABC इज प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। ये जो AB है ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस का एक हिस्सा है। AC जो है ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पे मैं नॉर्मल्स ड्रॉ करूंगा। ये एक नॉर्मल है और यहां पर मैं दूसरा नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। पहले इसका नाम मैं रखूंगा ON1, ON1, इसका नाम रखूंगा मैं ON2। These are the two normals, one drawn on the face AB and another drawn on the face AC। सपोज बेटा यहां पर एक इंसिडेंट रे है, इसका नाम मैं PQ रखूंगा। दिस इज द इंसिडेंट रे विच कम्स फ्रॉम ए लाइट सोर्स। इट फॉल्स ऑन द फेस AB ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग फेस AB ऑफ एन प्रिज्म एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I। यहां देखो, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I। इट इज द एंगल किसने बनाया है? इंसिडेंट रे ने किसके साथ बनाया? नॉर्मल के साथ। जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएगी उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो PQ जो आपकी है, दिस इज इंसिडेंट रे। PQ है इंसिडेंट रे। इसने स्ट्राइक किया प्रिज्म के एक रिफ्रैक्टिंग फेस पे। प्रिज्म के एक रिफ्रैक्टिंग फेस को इसने स्ट्राइक किया किस पॉइंट पे? पॉइंट Q पे, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I। ये PQ जो रे है ये किस मीडियम से आती है? रेडियल मीडियम।
जाना इसको किस में है? डेंसर मीडियम. इट हैज टू गो इनटू व्हाट मीडियम? डेंसर मीडियम. जैसे ये पॉइंट Q पे पहुंच जाएगी, इसकी रिफ्रैक्शन हो जाएगी. ये किस मीडियम में आएगी? डेंसर मीडियम. जैसे ही ये डेंसर मीडियम में आएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. इट विल बेंड, कहां बेंड हो जाएगी? शाबाश. इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. अब PQ जो है, दिस इज इंसिडेंट रे, ठीक है ना. जैसे ही ये सरफेस AB को स्ट्राइक करेगी, इसकी रिफ्रैक्शन हो जाएगी. क्योंकि इसको जाना है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, देयरफॉर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ON1. ठीक है ना. तो ये एंगल जो है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इसका मैं नाम रखूंगा R1. अब जो ये रिफ्रैक्टेड रे QR है, दिस रिफ्रैक्टेड रे QR, ये जो रिफ्रैक्टेड रे QR है, ये किस मीडियम में चलती है? डेंसर मीडियम में. अब ये किस सरफेस को स्ट्राइक करेगी? AC को. ठीक है ना. इसकी एक बार फिर रिफ्रैक्शन हो जाएगी. अब इसको कहां से जाना है? फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. तो ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यहां से इसको नाम रखेंगे RS. The refracted ray QR now acts as incident ray for face AC of the prism. Therefore, it undergoes one more refraction at point R, ठीक है ना, and goes along RS away from the normal ON2. Why it will bend away from the normal? Because it has to travel from denser to rarer medium. यहां से rarer medium है. ये जो रे है, रे RS जो है, इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे. इसको हम क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे. जो ये इमर्जेंट रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, इस नॉर्मल के साथ ON2 के साथ एंगल बनाएगी, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस. उसको हम E से डिनोट करेंगे. यहां पर जो ये एंगल है, इसका नाम मैं रखूंगा R2. ये R2 जो है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये R2 जो यहां पर है, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस फेस. व्हाट फेस? फेस AC. तो जो ये इमर्जेंट रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस. द एंगल मेड बाय द इमर्जेंट रे विद द नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इमर्जेंस. देखो, अगर मेरे पास प्रिज्म नहीं होता, तो ये PQ जो इंसिडेंट लाइट है, इट वुड हैव ट्रैवल्ड अलोंग स्ट्रेट लाइन. क्योंकि आपको पता है, लाइट ट्रैवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. अगर मेरे पास प्रिज्म नहीं होता, तो ये इंसिडेंट रे PQ जो है, इट वुड हैव ट्रैवल्ड अलोंग द स्ट्रेट लाइन. अब चूंकि मेरे पास प्रिज्म है, इसका प्रिज्म से क्या हो गया? ये जो इंसिडेंट रे आई, जब ये प्रिज्म पे पड़ी, इसको 2 बार रिफ्रैक्शन हो गई. ठीक है ना. Therefore, when a ray of light falls on the prism, it undergoes 2 refractions. ठीक है ना. तो अगर हम ये इस इमर्जेंट रे को यहां बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे, इसने इस इंसिडेंट रे PQ को यहां पर कट किया, इसका नाम मैं रखूंगा T. यहां रखो नजर. Thus, the incident ray, while traveling through the prism, suffers या undergoes 2 refractions and hence gets turn हुई. देखो, अगर प्रिज्म नहीं होता, ये सीधे चलती ना सीधे. Now, due to prism, this incident ray gets turned through angle. What angle? STU. This angle is called as angle of deviation. What is this angle called? This angle is called as angle of deviation. This angle is called angle of deviation. This angle is called as angle of deviation. इस एंगल को हम कहेंगे angle of deviation. This angle is called as angle of deviation. मैंने कहा आपको, when a ray of light travels through the prism, it undergoes 2 refractions and therefore it gets turned through an angle. What is that angle here? यहां पर वो एंगल क्या है? S2U. देखो, अगर प्रिज्म नहीं होता, ये सीधे चलती यहां पर. क्योंकि प्रिज्म की वजह से यहां पर इसने टर्न किया. ठीक है ना. This angle through which this ray of light turns while passing through the prism, this angle is called as angle of deviation. और
ये रे कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ये रे कौन सी है? इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल है, उसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, दैट्स कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिविएशन। या एंगल, यहां पर फिर रखो बेटा, ये बहुत जरूरी है। यहां पर जो लाइट है, दिस इज इंसिडेंट रे। जब ये प्रिज्म में पास हो गई, इसकी दो रिफ्रैक्शन हो गई एंड दिस लाइट गेट्स टर्न, ठीक है ना। यहां पर यहां से इधर, इधर से यहां आई और यहां से ऐसे चली गई। तो जब भी लाइट प्रिज्म में जाएगी, इट गेट्स टर्न, ठीक है ना, थ्रू अ सर्टेन एंगल। दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिविएशन। तो एंगल ऑफ डिविएशन की दो डेफिनेशंस आप दे सकते हो। द एंगल थ्रू व्हिच द लाइट गेट्स टर्न while passing through the prism, that's called as angle of deviation. या simple language में हम कहेंगे angle between incident ray and emergent ray is called angle of deviation. कल हम आगे जाएंगे, ठीक है ना।